This conference will now be recorded. Let's start, guys. Okay. Hello, guys. Welcome again. The third week session, machine learning by using the Python. So today we have to start some basic concept for Python. Okay. So let's start it. So I hope so. Last 15 session or 16 session have already cleared by everyone. Okay, so we can start it. Uh, so if you have any doubt, so please ask your doubt at the end of the session. Okay, it will be easy for us. So now we can start it. Okay. Python basic and the date is 6, 7, 21. Okay. Now today we have some use the append function in insert, extend, remove. Okay, so today we observe it, but we will do some basic thing. Suppose we have created an object by the name of subject. We can create a list by the machine learning ML, by the CS, mechanical engineering, and the IT, and there's the maths. Okay, so we run this, and if we have code for the print of length of subject, then we see the length. Length is 5. In the dictionary, we have the 5 elements. But if we want to add something, subject dot append we insert the EC electrical engineering. So we push the enter, then again we go for the subject and see this by using the append function. The ODP always adding some new elements or some uh, new things, so it will always be and add into the last position. So here we can write append always used to add new variables. Okay, clear. Now we go for some other. Suppose we go for the subject dot insert. Okay, we go for here and we have to write the arts. Okay, and we run it again and see the subject arts, because if you are trying to add new something, you have to
including the insert according to the position. The zero is the position because zero always start in the Python from the front side and back side from the -1. तो जो मैंने आज एंटर किया, अगर मैं सपोज करूँ मैं यहाँ पर डॉट इंसर्ट के अलावा मैं 1 करके उसमें AI लिखता हूँ, go from the subject and see this. Okay, this is the basic concept about the append and the insert. ठीक है, सपोज मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ नैनो के नाम से, again using for the A, comma B, C, comma D. Okay. One is equals to, okay, E, comma F. Okay. Now if we go for the okay, so it's like equal to, okay, we go for the nano dot extend, we go for the nano 1. Okay, now print of nano. क्लियर गाइस? अब एक्सटेंड क्या होता है? एक्सटेंड तो हमेशा लास्ट की पोजीशन से होता है, तो मैंने यहाँ से EF को एक्सटेंड करा दिए और नैनो के अंदर नैनो 1 इज द EF है, ये नैनो 1 इज E and F and and nano is ABCD. Okay, now if we go for the remove, एक्सटेंड को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपके लिए भी इजी हो जाएगा, बाद में कभी भी आप सपोर्ट करते हो. And function extend to extend something by adding new elements at the last. Okay. अगर मुझे कोई चीज रिमूव करनी है तो रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. ठीक है, तो लिस्ट के बाद फिर मैंने क्या किया, सपोज मैंने नैनो लिखा और डॉट रिमूव कर दिया एंड मेंशनिंग दैट एलिमेंट जो मुझे रिमूव करना है. सपोज करो मैंने सी लिख दिया है, सी नोट किया और सी is removed. Okay, now this is the function, this is the use of the remove. ठीक है, सपोज करो अगर मैं यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ, आपको याद है ये डेटा सेट में हम नॉर्मल रिमूव भी यूज कर सकते हैं या पांडास का यूज या ड्रॉप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. आपको याद होना चाहिए कि हम पोजीशन, मैंने आपको ड्रॉप करने के दो मेथड बताए, बाय द नेम एंड बाय द पोजीशन 0 1 2 3 4 while we are doing the Python using the pandas library. Okay, so now we use the pop function. Pop function in list it remove last value by default. Okay, so this list is mutable, everyone knows this mutable. Okay, mutable means change value. Okay, so suppose we have the number in the list form, that is 24, 56, 31.
2978. Okay. If we go for the zero, then it will be, sorry, number. Again, error, it's numbers. Okay, so it's 24. So here we have to fetch the element also. We are repeating this thing again. But anyways, repeating is a good thing. So then we have to, sorry, I'm always typing. Okay, if we go for the some minus position, for the -2, we go for the 89. Okay, suppose now we have to now here now here strings array and numbers here. Suppose we have the some names. We have take number names x, comma y, comma z. Okay. And then if we take some values with a mix of list and is equals to, we take suppose 9.5, comma we take some sugar. Okay, then we take some number 25. Okay. No. See this, if we create a new object by the name of combine. Okay, and we Excuse take names. Yes, who's sir. this? Please, guys, inbox में डाल दो यार. Please drop the message in the inbox. And this values. Okay, so here let's see this. This the element is combined, which is the different forms. See this. Now we are combining. Okay, so this is the basic thing that we have to do. Insert, I've already told you. Append, I've already told you. The remove, I've already told you. Okay. And pop function. And the other pop function. 18 and 19. Okay. 18, 19 inputs बताने हैं. Okay. Guys, if you see the input command, input cell number 16, in this creating a list by the number number of elements 24, 56, 31, 89, 78. हमारी जो भी स्टार्टिंग पाइथन में होती है वो फ्रंट से 0 से होती है और बैक से -1 से होती है. मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो 24 आया. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फैच द वैल्यू. मैं पोजीशन फैच कर. मैंने आपको पांडव में कितना डिटेल में बताया था. बट एनीवेज आई थिंक सो दिस सम ऑफ द पीपल आर न्यू इन दिस क्लास. तो नंबर्स के बाद फिर मैंने ये नंबर मतलब उसी ऑब्जेक्ट को उसी लिस्ट को मैंने कॉल किया. फिर मुझे नंबर से ही फैच करना है जो नंबर से इंट्रोड्यूस है और 2 रेशियो डाल दिया. मतलब 2 के आगे से स्टार्ट हो रहा है. तो क्या है 0 1 2 2 के आएगा मैंने 32 पे. ठीक है, तो कितना आ गया 31 89 70. अगर रेशियो के बाद है जहां तक एंड लिमिट है इसकी. क्लियर? प्लीज ड्रॉप मी द मैसेज आल्सो. उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने नंबर्स लिखा. नंबर्स में -2 लिखा. और पीछे से आपने कभी -0 सुना ही नहीं होगा. मैंने तो कभी नहीं सुना. पॉइंट्स में सुना होगा -0 पॉइंट समथिंग कुछ भी. यहाँ पर क्या है, मैंने जब -2 किया तो पीछे से -1 होता है हमेशा. तो -1 पे 78, -2 पे 89. ओके, आई होप सो क्लियर हो गया होगा. थैंक यू. तो हमें हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई भी डेटा वैल्यू फैच करेंगे, एलिमेंट नहीं सॉरी वेरिएबल फैच करेंगे तो आप आगे से प्लस में करेंगे
और बैक साइड से माइनस में करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ फिर से, और function is used to delete through index value, okay। तो सेम मैं एक काम करता हूँ, फिर से कोई नंबर बना लेता हूँ जिसको मैं एक ऑब्जेक्ट लिस्ट में क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज करो 1 1,34,33,65,37, ओके। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर टॉप, मैं पोजीशन डालता हूँ 1, ठीक है गाइस। तो 134, अगर मैं इसको नाम को फिर से कॉपी करूँ तो आप देख रहे हो 34 जा चुका है। टॉप फंक्शन इज यूज्ड टू remove an element inside the list, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम लोग लास्ट वैल्यू मतलब उसके पोजीशंस के थ्रू हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पर एक फिर से फंक्शन लेता हूँ, इसी को लेता हूँ, बट इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, मैं इसको नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर अगर मैं नाम 1 डॉट कॉप करता हूँ, ठीक है। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या जा रहा है, लास्ट वैल्यू जा रही है जो मैंने आपको बताया। 1 में अगर आप देखेंगे क्या हो गया, लास्ट वैल्यू चली गई, ठीक है। सो दिस इज द यूज फॉर दैट। अगर मुझे कोई डिलीट फंक्शन करना है, नंबर पर हमें 2 होते हैं तो ठीक है, delete function just a second, आपका आंसर मिल जाएगा, is used to delete the values, okay। नंबर फिर से नंबर 2 क्रिएट किया 23, 41, 90 किया मैंने, अब मैंने इसमें लिखा आपका delete नंबर रेशियो, नंबर किया नंबर सॉरी इट्स नंबर 2, ठीक है गाइस, हट गए, ठीक है। उसके आगे के हट गए पोजीशन के बाद, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे ही अगर मैं इन लिस्ट को लेता हूँ फिर से, आई थिंक सो राहुल गॉट द आंसर। सपोज करो मैं यहाँ पर नंबर 4 लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें लिखता हूँ मिनिमम नंबर ऑफ नंबर 4, देखिए मुझे क्या मिल गया, मिनिमम मिल गया। इधर मैं मैक्सिमम लिखता हूँ अबाउट द नंबर 4, तो क्या हो गया, मैक्सिमम मिल गया। यही मैं इनका सम लिखता हूँ, सम ऑफ, गाइस प्लीज टाइप इट क्लियर, ठीक है। और यही मैं नंबर को सॉर्ट करता हूँ, तो ये सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब आई होप थोड़ा सा बेसिक आपको और क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा कन्वर्जन बता दूं कि मैं अभी क्लास के एंड में थोड़ा सा रेग्रेशन का पार्ट भी दूंगा, है ना।
मैं कुछ चीज़ें ऐसे हैं मैं यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे convert an object to a given type. Okay. Suppose ये मैंने फ्लोट डाल दिया, आपको पता है तो ट्रू वैल्यू है वो फ्लोट नहीं है। चलो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, a इज इक्वल्स टू 2, तो उसका अगर मैं टाइप देखूंगा, टाइप ऑफ ए क्या है मेरे पास, सॉरी इट्स नॉट दैट ई टाइप, इस टाइप क्या है, इंटीजर्स है। अगर मैं इसको फ्लोट लिख दूँ, फ्लोट ऑफ ए, सी दिस, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है गाइस, हाँ तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने ये टाइप चेंज करना आपको पहले बताया था। जैसे मैंने आपको रेग्रेशन में एक वेरिएबल को कन्वर्ट किया था कैटेगरीज ऑब्जेक्ट्स में, और मैंने उसको रेग्रेशन में यूज किया था। तो जब मैंने उसको रेग्रेशन में यूज किया था तब आपने देखा था उसमें एरर आ रहा था। क्यों? क्योंकि हर एक वेरिएबल को अपने अकॉर्डिंग एल्गोरिथम जो लगानी है आप पहले वो डिसाइड करोगे, और जरूरी नहीं है एक ही डेटा सेट में एक ही एल्गोरिथम आए, मल्टीपल्स आ सकती है। ठीक है, so during the multiple you need to focus understanding कि मुझे डेटा में कैसे अप्रोच करनी है। ठीक है, तो मैं भी यही चाहूंगा कि जिसके प्रोजेक्ट्स होंगे अब तो वो मुझे फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन के साथ साथ। ठीक है, अब सपोज करो मैं यहाँ पर इंटीजर्स लेता हूँ, 2.9 ले लेता हूँ मैं, सी दिस 2 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका str लिखता हूँ, str और 2.7 ले लेता हूँ, तो आप देखिए इसमें आ गया इन्वर्टेड कॉमा लगा, मतलब स्ट्रिंग लिया है मैंने। ठीक है, दिस इज क्लियर। राहुल, आई ऑलरेडी परफॉर्म द सॉर्टिंग फंक्शन। यार स्ट्रिंग में कभी वर्क कर सकता है विशाल, मैंने तो नहीं किया आज तक कि सॉर्टिंग वर्क कर रहा हूँ। हो सकता है आपसे कर जाए बट मेरे से नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा एक बार कंडीशन स्टेटमेंट में भी आ जाता हूँ फिर से आज। भाई सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है? मैंने बहुत सारा बेसिक लिया है इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा आप लोगों का बेसिक ले लेना चाहिए एक बार और ज़्यादा, सो दैट ना मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे फिर मैं पीछे नहीं जाऊँगा। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ द बेसिक, दैट्स व्हाई। ठीक है, कि मुझे हर स्टूडेंट के बारे में सोच के देखना है उसके लिए है कि नहीं है, रादर देन फ्यू स्टूडेंट जो रेगुलर है डेफिनेटली तो कुछ अच्छा ही करेंगे। सपोज एक्स ग्रेटर देन 0, देन प्रिंट ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, एवरीवन नोज क्या आने वाला है। ठीक है, द आंसर इज पॉजिटिव। एक्स मल्टीप्लाई y if x is 0 multiply suppose we have to take some value here. Suppose we have entered the value of x is equals to 5. Okay. Now it's positive. Yes, should I remove you from the class?
Okay. Now if we go for if else if else statement, this values are the mistakes. Okay. Take if x is greater than 0, print positive. Okay. Then after if we put the x, then again print print 0 or negative. Okay guys, so everyone knows the answer. I know you are great here. 0 negative. क्यों भाई 0 नेगेटिव में एरर क्यों आ गया? जस्ट होल्ड ऑन, क्या एरर दिखा रहा है इसके अंदर? Oh, sorry, it's capital X. I have already defined the small x. Sorry. किसी ने आंसर दिया है विशाल? Yes. देखा guys, the case sensitive है. You are also observing these things. Great, great Vishal. Yes. Okay. Suppose if I use x if as if as statement, if x is greater than 0, then print positive. Guys, till here सबको क्लियर है? मुझे प्लीज बताते रहिए मैसेज के थ्रू, मुझे भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे मूव करने में. 0 print 0, and then we go for else. Okay, print negative. Okay, anyone give me the answer in the inbox? What will be the output of this function? It's positive विशाल, short में लिखा है, सही है. It's positive. Great. Only Vishal and Amrit gave the answer. Tanya will also give the answer. If we go for the single line statement, single line, if statement, okay, then if x is greater than the 0, then the print of positive. Okay guys, now will be the positive. Clear? If we go for some other different part with a link single line, we add something in the single line. If as is statement as a entry operator. Okay.
positive if x is greater than 0, else if 0 or negative. Then see this positive. I hope so. This is a different thing for you. Okay. So guys, सर प्लीज रिपीट कर दो आप. rather than Sanju unmute your mic, please drop the message here. I will always give the answer of each and everyone. Guys, in this you have saw that single line statement, if else statement. So in this you observe that I've already mentioned each and everything in a single line. The positive, if you go for the above statement, above inbox, entering the inbox, in that particular file I show you कि मैंने जो single statement किया है वो मैंने मतलब जो else एफ यूज किया है वो मैंने मल्टीपल लाइन के साथ किया है. आई विल शो यू इफ else स्टेटमेंट जो मैंने किया है, बट यहाँ पर जो मैंने किया है वो सिंगल लाइन में करने की कोशिश करी है. जस्ट सी इनपुट नंबर 46 मैंने जो इफ else यूज किया है ना. Sorry, I received the one important one. So that's why. तो आप देख रहे हो जो ये मैंने इफ एल्स का स्टेटमेंट यूज किया है मल्टीपल लाइन में. जस्ट ऑब्जर्व इट. कंडीशन एक ही है, एक्स इज ग्रेटर देन द 0. ओके. प्रिंट पॉजिटिव एल्स प्रिंट 0 और नेगेटिव. ठीक है. एक्स मेरा क्या था वहां पर, शायद मैंने 3 वैल्यू इंपोर्ट कराई थी, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया. और यहाँ पर जो मैंने नीचे यूज किया है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. A second, that's why I'm scrolling down. It's also creating an issue. ठीक है. जस्ट सी दिस. इसमें मैंने क्या किया, पॉजिटिव इफ ग्रेटर देन एक्स इज 0 एल्स 0 और नेगेटिव. ठीक है. तो मैंने जो ये सिंगल लाइन में जो ये मैंने लिखा है, इसमें पहले मैंने कंडीशन के आउटपुट के बेस पे कंडीशन डिफाइन करी है मैंने. ठीक है. अब यहाँ पर जो भी मैंने यूज किया है इसमें टेरनरी ऑपरेटर. ठीक है. तो जो ये कहा जाता है, ये टेरनरी ऑपरेटर कहा जाता है पाइथन में. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछता है क्या कहते हैं हाउ यू कैन यूज, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज कॉमन टू आस्क इन एन इंटरव्यू, बिकॉज द टेरनरी ऑपरेटर मींस होता है कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है. ये जावा की फाइल में मोस्टली यूज, आप जो जावा कर रहा होगा उसमें देखा भी होगा. ठीक है. मैंने तो जावा नहीं किया फिलहाल, है ना, बट मैंने ये पाइथन में पढ़ा है. ठीक है. आई होप सो अब क्लियर हुआ होगा संजू को. ठीक है. तो अब आप देखो यहाँ पर मैंने बीच में कंडीशन लगाई है मैंने. ठीक है. और प्रिंट मैंने स्टार्टिंग में लिया है और लास्ट में लिया है. ठीक है. तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप सिंगल लाइन ऑपरेटर मेंशन करेंगे तो आप सेंटर में कंडीशन रखेंगे. ठीक है. इफ एल्स के साथ. ठीक है. क्लियर है. ठीक है. अब मैं कुछ एम्प्टी लिस्ट सोच रहा हूँ क्रिएट करने की, बट वो तो मैंने आपको बता रखा है. और मैं आपको क्या बताऊँ, सर्च भी हो गया आपका, रिमूव भी हो गया, पॉप भी हो गया, डिलीट भी हो गया आपका. ठीक है. सपोज करो मैं आपको एक बार लिस्ट स्लाइसिंग भी करवा देता हूँ, तो हमने ऊपर ही किया है, फिर से एक बार कर लेते हैं. गाइस यहाँ पे क्लियर है ना सबको. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. लिस्ट स्लाइसिंग
बिकॉज टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ आवर बेसिक। उसके बाद अब जो भी क्लास होगी वो मशीन लर्निंग ऑफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी, ठीक है। या उसमें कुछ डेटा हैंडल करेंगे मिलके हम लोग, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर मैंने प्लीज ड्रॉप मी द मैसेज टिल यर एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर मैंने वीक डेज लिखा, मंडे लिखा मैंने यहाँ पर, फिर ट्यूसडे लिखा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आपका वेडनेसडे लिखा, फिर मैंने थर्सडे लिखा, स्पेलिंग गलत हो सकती है, जस्ट इग्नोर द स्पेलिंग्स, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर फ्राइडे लिखा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एलिमेंट 0 पे पकड़ना चाह रहा हूँ, एलिमेंट 0 पे, ठीक है। तो प्लीज राइट इन द इनबॉक्स what should I have to write over here। मुझे 0 एलिमेंट फैच करना है। Great. हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। मंडे आ गया। सपोज आई हैव टू फैच द एलिमेंट, सपोज 0 को मैं क्या देता हूँ, इंक्लूसिव। Guys, today I take the a real basic. This is called the pure basic of Python, and it's really helpful for you. I'm using some different words which you was not aware till yet. Okay, 0 inclusive, 3 is exclusive. So can anyone type in the inbox how I can write this function? Okay, only home. Okay. Oh, rather than putting the 0, if I type it just elements of the weekends. Weekdays. Okay, Shruti. I don't want to write a simple 3 करके आ गया। If weekdays go for the 0 ratio 3 again, ठीक है। You all are right। कि आप स्पेस नहीं देंगे तब भी वो 0 से ही कैलकुलेट करेगा, rather than mentioning the 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट्स करके 3 से थ्रू दी एंड करता हूँ, ठीक है। मुझे इसका आंसर कीजिए, टाइप इन द इनबॉक्स। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। Only you won't give the answer, only you win the prize in the fastest in the first, ठीक है। Not very interesting part, backward step by -1. So what should I write to it? To fetch all the elements but in the backward, मतलब मुझे रिवर्स कर देना है इसको पूरे को। I have to reverse it. What should I write to it? No, Praveen, you are wrong. Just try it once more. Great, Tanya. Absolutely great. Just see this. Vishal, oh, great. ठीक है। Suppose one question also over here. Native method returning the
list backwards. Guys, another function, another challenging quiz for you, because from the starting I always share the alternative methods in the libraries, if you remember it. Okay, so same here I asked the reversed. अरे यार मैंने बता दिया, सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय फॉल्ट यार. So type of okay, the bracketation. Okay, guys, clear? I hope so. This really beneficial for you. Okay. ठीक है, अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ. जैसे मुझसे अभी किसी ने पूछा था कि नंबर्स मतलब नेम्स के साथ सॉर्टिंग हो सकती है. ठीक है, एक काम करते हैं, उसको भी लेके देखते हैं. ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू यूज दैट, लेकिन आप उसको उसका टाइप कैसे मेंशन करेंगे, उसको कहाँ से फैच कर रहे हैं आप? रिवर्स ही तो बताएंगे, लिस्ट में से उठा रहे हैं ना, फॉर द एलिमेंट यू आर फैचिंग फ्रॉम द लिस्ट. अगर गाइस, अगर आपको कोई भी लगता है कि सर ने ये क्यों लिखा है और ये नहीं होना चाहिए, तो आप एक काम करो, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टूल, नो वन चार्जेस यू और पुटिंग यू और जीएसटी ऑन योर ऑपरेटिंग द टूल. आप टेंशन मत लो, आप उसको कर दो, एरर ही तो आएगा. नो वन कैन पुट द एक्स्ट्रा जीएसटी. ठीक है, तो आप उसको परफॉर्म करके देख लो, आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा. बट डू इट. ठीक है, whom just try sort a list this. Now I will show you something. Okay, I was going to put the message inbox that till yet everything is clear. Okay. Suppose मैं स्टेट के नाम देता हूँ कुछ. ठीक है, और मैं उसमें लिखता हूँ इंडिया, फिर लिखता हूँ कनाडा, मैं लिखता हूँ उसके अंदर लंदन, फिर मैं उसके अंदर लिखता हूँ सुडैन. ये मेरी लिस्ट हो गई. मैं क्या करता हूँ, स्टेट को डॉट सॉर्ट करता हूँ और अगेन आई एम टाइपिंग द स्टेट. आई होप जिसका ये क्वेश्चन था उसको आंसर मिल गया होगा. क्या सर हम सॉर्टिंग लिस्ट के साथ स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं? Yes, Vishal, that's why I'm showing you in front of you. तभी तो मैंने वो टॉपिक उठाया, मुझे याद आ चुका था कि टॉपिक मिस हो रहा है. थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू. आई होप सो क्लियर है सबको यहाँ तक. प्लीज ड्रॉप मी द मैसेज एक्चुअली रिवाइड, एटलीस्ट बात बता तो दो. ठीक है, सपोज करो मैं सॉर्ट को रिवर्स करता हूँ. ओम नहीं सुधरने वाला भाई. ठीक है, अब मुझे बताओ, पुट योर आंसर इन द ड्रॉप बॉक्स. मुझे रिवर्स करना है. हाउ आई कैन परफॉर्म इट? Please drop me the message, drop your answer in the inbox so that I can type over here to verify your answer.
ओके, पहला आंसर मेरे सामने आया। ठीक है, विशाल वाला लिखते हैं, चलिए विशाल में क्या है। -1। ठीक है, अब इसके अलावा कोई और आंसर देगा मुझे? मेरे पास प्रवीण का आंसर आया, जस्ट मैं प्रवीण का टाइप करता हूँ आंसर पहले में। प्रवीण का भी सही है। ठीक है, ओम कहता है सॉर्ट असेंडिंग असेंडिंग, और इसमें हम लिख देते हैं इसके लिए स्टेट। ओम ठीक है, ऐसे लिख दें या कुछ और करना है? ठीक है, बस 2 ही आंसर सही है, बाकी सबके गलत है। मैं इसको आपको बता दें नए पैटर्न से क्या होगा इसका। स्टेट डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है गाइस, क्लियर? आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब प्लीज गाइस सब लोग एक मैसेज डाल दीजिए इनबॉक्स में, क्लियर टू आई एवरीवन। श्रुति, मैंने क्या किया है, मैंने लिस्ट है, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, मैंने लिस्ट से उठाया, रिवर्स किया। सॉरी, ये नहीं है, सॉरी सॉरी, स्टेट है। ठीक है, स्टेट मतलब जहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएट है, डॉट सॉर्ट करना है। रिवर्स मतलब रिवर्स करना है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा ना, तो वो पिक नहीं करेगा, वो वैसी लिस्ट मेरे सामने प्रेजेंट कर देगा। मुझे रिवर्स करना है, मतलब ये बात सही है, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग द ट्रू। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू ट्रू लिखा। अगर आपको याद हो पांडाल में जब मैं कोई चीज ड्रॉप कर रहा था तो मैं क्या लिख रहा था, एक्स इज इक्वल्स टू 0 और 1। ठीक है, मतलब रो कॉलम को डिफाइन कर रही थी, या एक्स इज ट्रू कर रहा था या फॉल्स कर रहा था। तो यहाँ पर भी मैंने इसको कहा है ट्रू रिवर्स करो। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया। इसमें मैंने लिखा just a second, return a sorted list. Can anyone tell me what is the sorted list in the inbox? गाइस, आई होप सो कि आपको इस सेशन में भी कुछ अलग मिल रहा होगा, जो बेसिक प्रैक्टिकल है। कि आई नो कि अगर आज नहीं गेन हो तो कभी नहीं गेन हो सकता। modify modify the original list। ठीक है, अब मेरा आप देखो यहाँ पर स्टेट में मैंने क्या लिखा था, सॉरी स्टेट मेरा क्या था यहाँ पे। अच्छा, ये ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है। ठीक है, एनीवेज मैं इसको यहाँ पर सॉर्टेड लिखता हूँ, स्टेट हो गया गाइस। इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सॉर्टेड स्टेट
कॉमा रिवर्स लिखता हूँ इक्वल्स टू देन अगेन रिवर्स हो गया, सॉकेट भी फेल हो गया। ओके गाइस, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक किसी का? ठीक है, थैंक यू। We have something different for the tuples. Tuple properties. Ordered iterable immutable. Okay. Can contain multiple data types. I hope so ये स्टेटमेंट अब लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, now create a tuple directly। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पर डेसिमल लिख दिया है और टपल को मैंने लिख दिया 0,1 कॉमा लिख लेते हैं। सपोज करो ऐप लिख लेते हैं, ऐप बार का नाम ऐप लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, और फिर मैंने इसको करा दिया रन, हो गया रन, कोई इश्यू नहीं आया। ठीक है, मतलब इसका मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स ले रहा है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो देखो आ गया। सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट अ टपल लिस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, digits equals to the tuple। अब देखो टपल के अंदर मैंने लिस्ट बना दी, मैंने अगर लिख दिया ऐप बार, कोई एरर आया क्या? कोई नहीं आया। मैं आपको आज बता रहा हूँ ना भाई, टप्पल है। Rahul is not the tuple TOUPLE or the triple, it's not the triple X यार। कोई नहीं हंसेगा मेरे अलावा, डोंट वरी। ये जो मैं आपसे आज करा रहा हूँ ना, आपसे ये फॉर्म कराएगा कि क्रिएट अ लिस्ट विद इन द टपल। आप समझ रहे हो ना, या क्रिएट अ टपल फ्रॉम अ लिस्ट। तो ये चीज है ना, इसको प्लीज एक बार ढंग से पढ़ना। और आई होप सो क्लियर हो गया यहाँ पे सब लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज सब लोग एक बार मैसेज कर दोगे तो इट माइट बी इजी फॉर मी। तो करो, मैंने डिजिट 2 लिखी, डिजिट्स नहीं है, सॉरी 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 गाइस, यहाँ पर डेसिमल आएगा, डिजिट्स नहीं है, सॉरी। बट एनीवेज, तो यहाँ पर भी डेसिमल ही आएगा। आज मुझे एक दो नाम बड़े नए दिख रहे हैं, प्लीज गाइस छोड़ के मत जाना जो नए स्टूडेंट्स आ जाए। थोड़ा सा उनसे जरा गुफ्तगू करेंगे जरा सबके सामने। कहाँ थे ये महाशय आज तक? उनका नाम नोट कर लिया है। एक डेसिमल
ठीक है, अब मैं डेसिमल पे यहाँ पर 2 लिखता हूँ। कैन एनीवन गिव मी द आंसर? जो हम टपल में वैल्यू फैच नहीं कर सकते थे बट लिस्ट में कन्वर्ट हो चुके, तो हम उसको हम फैच कर सकते हैं। नहीं नहीं ओम, यू आर रॉन्ग। ओके ओम, नथिंग, अब आपने एक बार आंसर गलत दे दिया, अब आप कुछ भी कर लो वो गलत ही जाएगा। दिस इज द केबीसी। विशाल यस तो मत लिखो यार, आंसर दे दो, वो ज्यादा बेटर है। यस संजू। जो संजू पे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि संजू इज सेड कि सर आई एम फ्रॉम द मैकेनिकल इसी बैकग्राउंड, बट आई एम कैपेबल टू डू द कोडिंग, बट राइट नाउ आई डेफिनेटली एश्योर कि संजू का कुछ लेवल बढ़ा है आज के दिन। आफ्टर 3 वीक्स हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। एम आई राइट संजू? मुझे आपका रियल नेम नहीं पता, अब देखो एक बार आ गया। ठीक है, गो फॉर द लेंथ ऑफ द डेसिमल। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर लेंथ आ गई मेरे पास, 3 की आ गई। ठीक है, if we go for the counts, the number of instances that value, क्या लिखा, decimal dot counts। Can anyone give me the answer? क्या आना चाहिए इसका? 1, yes, great, it's 1. Okay, you go for the return. Guys please drop me the message कि this thing is clear, कि आज मैं और ज़्यादा बेसिक किया ना, आई रियली नो कि ये सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, सबके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज मेंशन दैट थिंग आल्सो कि मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ डिफरेंट ही था आप लोगों को पढ़ाने का। Can anyone give me the answer of this? Return the index of the first instance of that value. Can anyone want to give the answer? मुझे आंसर देना चाहेगा? नहीं हो, पूरा सिंटैक्स लिखो ना। ठीक है, just see this. ठीक है, क्लियर है? तो गाइस आज के सेशन के लिए this is sufficient for you, I think so. So please drop me the message, this is sufficient for today class, so that we can discuss more after stop the recording of this session. Thank you so much. Thank you so much for listening me peacefully and give me the lots of correct answer by everyone. So I definitely satisfied myself even also कि हाँ मैं किसी को कुछ सिखा पा रहा हूँ, है ना। मुझे लगता है हम लोग कल 3rd वीक हो रहे हैं, 20 डेज हो चुके हैं आज उनको लगभग, और सबका एक ना एक स्टेप आगे ही बढ़ा है। लास्ट प्रीवियस नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम बाय द सोनू सर, gave the thanks to Sonu sir from my side and from your side also. That is appreciable that इन्होंने इतने अच्छे फॉर्मेट में इतने अच्छे अमाउंट्स में सब कुछ चीज़ें आपके लिए रखी हैं, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। कल से हम अपना मशीन लर्निंग पे आने वाले हैं, ठीक है, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर। कल रेग्रेशन पे थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर करूँगा फिर से, और ठीक है जो इनका छूट गया था फिर से रिपीट हो जाएगा। उसके बाद हम लॉजिस्टिक पे आ जाएंगे जो आपकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, और मैं कल से ही मोस्ट प्रोबेबली डेटा देना शुरू कर दूंगा।
अगर किसी के पास कोई ऐसा डेटा है तो वी कैन स्टार्ट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।